Alternating series. So, till now, whatever series we were talking about, it was positive term series. If you have noticed the definition of each and every test till now, you will find that this series is a positive term series unless and until this alternating series come into action. Very warm welcome to all of you. So today in this video we will be covering this alternating series topic. In this you have to learn 2 to 3 tests. So alternating series is very easy. It's very simple. The only difference that you have to deal with the negative terms also in this series. Positive terms are gone. Now you will have both the positive and the negative terms. So let's see what is its statements says. Okay. So an infinite series is called an alternating series if the terms are alternately positive and negative. Thus, a series of a form u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus u5. So these are, see, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So this is a alternating. The series is alternating. So here un is greater than 0. For each n is an alternating series and is denoted by this. How? Let me check for you. If you put the value of n 2, let's say 2. So 2 minus 1 is 1 and this minus 1 to the power 1 into 2. This is, we are having this as a minus 1 because किसी का पावर अगर ऑड रहता है तो वो माइनस रहता है एंड यू एन टू है तो -2 मतलब 2 जो होगा वो -2 होगा. ठीक है. वैसे ही अगर हम लोग एक ऑड टर्म ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 3 minus 1 2 हो जाएगा. सो the negative sign will vanishes and you will get a positive sign over here. और यहाँ 3 है मतलब जो ऑड है उसके साथ जो साइन लगा रहेगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और अगर वो इवन है तो वह नेगेटिव हो जाएगा. मतलब ईच एंड इफ यू सी द पैटर्न यू विल फाइंड दैट ऑल द इवन टर्म सीरीज हैज अ नेगेटिव साइन इन इट and all the odd terms in that series has positive sign in it. Example, this is example. You are having plus minus plus minus plus minus. Okay, this is an alternating series. Okay, so to check the convergence and divergence of alternating series we have a test known as Leibniz test. Through this test, we can find that any alternating series is converging or diverging. ठीक है? Are you getting my point till here? Now, Leibniz test. If the alternating series this is u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus un is greater than 0 for each n. Now un is greater than 0 means each and every term is greater than 0. Each and every term is a positive term. ये बात कुछ हजम नहीं हुई. You are telling me कि each and every term is a positive term, but we have a negative sign here. In the series, we have a negative sign. So actually, this series goes like this. This series is u1 minus u2 plus u3 minus u4. Means each and every term is positive in its own. But what is difference? The sign negative which is outside this. Okay, this, so that's why here it is written that un is greater than 0 for each n. Now such that you have to fulfill this two condition. First is un plus 1 is less than equal to n. Un, this shows that the series is monotonically decreasing. Okay, not increasing, decreasing. मतलब ये जो बाद का टर्म है वो छोटा है. सो बाद का टर्म छोटा किस में होता है? डिक्रीजिंग में होता है. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्यों बोल रही हूँ? इक्वल का साइन है. यू नो द ग्राफ ऑफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. ग्राफ ऐसे जाता है, तो इंक्रीजिंग का है. ठीक है, डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसे जाएगा.
और अगर सिर्फ डिक्रीजिंग है तो ऐसे होगा, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब कांस्टेंट भी है, तो मतलब एक जगह कांस्टेंट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इक्वल का साइन दे रहे हैं यहाँ पर। एंड नंबर 2 इज जो लिमिट है UN है इन्फिनिटी पे 0 आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस को फुलफिल करता है देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, नहीं करता है तो नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, वी विल सॉल्व दिस लेबनिज टेस्ट through actually we will prove this. Okay, you will find proof in your books, so you can take reference from that, और मैं अभी proof करा रही हूँ. Okay, so for the proof let Sn denotes the nth partial sums of the given series. जो Sn है, हम एक nth partial sums मतलब sum of हम लिए है, ये इसका लास्ट टर्म क्या होगा, ये होगा. This we have assumed. ठीक है, अब हम इसका सब सीक्वेंस लेंगे. ठीक है, सब सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस के ही कुछ पार्ट्स, तो हम सब सीक्वेंस सपोज S2n लिए, S2n. चलिए अब मैं फ्रेशली आपको यहाँ पर दिखाती हूँ बनाकर. ठीक है, कोई भी सीक्वेंस है Sn या UN, उसके सब सीक्वेंस हम U2n कर सकते हैं, U2n+1 कर सकते हैं, U2n+2 कर सकते हैं. ठीक है, अब आप कहोगे 2 ही क्यों, तो यू गाइस कैन ऑल्सो एज्यूम U3n+1. ये जो सीक्वेंस है इसके सब सीक्वेंस है. ठीक है, सीक्वेंस वाले जो वीडियो सीरीज़ था मेरा, उसमें बहुत बार ये सब सीक्वेंस का टर्म्स आए हैं, वहाँ भी मैं बताई थी. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो Sn है ना, इससे हम UN - U2 + U3 - U4 till -1 to the power n-1 UN कंसिडर किए हैं. नाउ वी विल टेकिंग द सब्सिक्वेंट पार्ट, मतलब मैं एक S2n ले रही हूँ. ठीक है, UN - U2 + U3 - U4, तो इसके लास्ट टर्म में क्या डिफरेंस आएंगे, इसका लास्ट टर्म हो जाएगा माइनस के U2n. ठीक है, इसके लास्ट टर्म माइनस के U2n हो जाएगा. एंड अगर मैं S2n+1 लिखूं, तो S2n प्लस एक मिनट, S2n+2 लिखूं अगर मैं. ठीक है, तो S2n+2 कैसे आएगा, S2n+2 मतलब जो S2n है उसके बाद का दो टर्म, मतलब जो ये है UN - U2 + U3 - U4 टिल तो -2UN तक है, उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, U2n+1 हो जाएगा, और उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और U2n+2 हो जाएगा. यही तो है. तो अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, तो इतना पूरा जो टर्म है मेरा, अगर मैं S2n+2 को S2n से माइनस इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा इतना जो टर्म है वो गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, U2n+1 - U2n+2, ये रह रहा है मेरे पास लेफ्ट. तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें रिलेशन क्या है, ये इन दोनों में रिलेशन मैं जानना चाह रही हूँ. ठीक है, आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बहुत फिर से मैं एक लेबनिज टेस्ट का जो स्टेटमेंट है मैं आपको पहले वो दिखाना चाह रही हूँ. ठीक है, तो ये जो है, आप ये दो कंडीशन को याद रखो, सच दैट दिस मतलब UN जो है वो बड़ा है UN+1 से फॉर ईच n, एंड UN इज 0 जब n इन्फिनिटी है. ठीक है, ये इसका गिवन है आपको. ठीक है, अब आप देखिए, तो हम देखें कि हम क्या देखें, यहाँ मैं लिखती हूँ, जो UN है वो बड़ा है UN+1 से, तो U2n+1 जो है वो बड़ा होगा U2n+2 से. कैसे, ये मतलब UN जो है वो पहला टर्म है, ये बाद में आता है, ये पहले आता है, तो ये अगर इससे बड़ा है तो UN का ही मैं एक सबसीक्वेंस ली हूँ U2n+1 जो पहले आता है, तो इसका जो दूसरा सबसीक्वेंस है जो इसके बाद आता है, तो वो तो इससे छोटा ही होगा, मतलब ये बड़ा होगा इससे. ठीक है, तो U2n+1 - U2n+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
ये एक पॉजिटिव टर्म होगा, ये एक पॉजिटिव टर्म हो गया, मतलब कि हमारा जो ये है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, सिंस, लिख लीजिए, सिंस un+1 इज लेस देन un फॉर ऑल n। वहाँ से मैं इसको भी लिख सकती हूँ कि ये भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या था, ये कुछ नहीं बल्कि ये था, इतना इज इक्वल टू इतना था। मतलब अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको कि जो S2n प्लस 2 माइनस S2n हमने किया इज इक्वल टू U2n प्लस 1 माइनस U2n प्लस 2, ये मैंने प्रूव किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब S2n प्लस 2 माइनस S2n भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हुआ फॉर ऑल n। ठीक है, नाउ जो S2n है, S2n जो ये S2n है वो जैसे जैसे आप n का वैल्यू दोगे वैसे वैसे आपको S2 S4 S6 ऐसे करके S2n तक रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप s का वैल्यू दे रहे हो वो वैसा हो रहा है। तो S2n प्लस 1 कैसा रहेगा, S2n प्लस 1 हो जाएगा, जैसे इसमें 1 दिए तो S3 हो जाएगा, ये इसमें 2 दिए तो S5 हो जाएगा, तो S7 हो जाएगा, ऐसे S2n प्लस 1। ये जो मैंने रिलेशन है ऊपर जो मेरा रिलेशन है इससे मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि S2n प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू S2n। मतलब इसके S2n प्लस 2 है ना, मैं सॉरी मैं 1 का कर दी हूँ। ठीक है, मैं इधर 2 का कर देती हूँ, S2n प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 दे रहे हो तो यू विल गेटिंग S4, जब 2 दे रहे हो यू आर गेटिंग S6, यहाँ पे नहीं 2 2 4 सॉरी S8। ठीक है, फिर 3 देगा, 3 2 6 7, जब 3 दे रहे हो तो S8, जब 4 दे रहे हो 4 2 8 9 10 तो S10। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो हम ये जो कंडीशन है S2n प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S2n, मतलब ये इससे बड़ा है, मैं ये इसको काट दे रही हूँ ताकि आपको ईजी हो समझने में। मतलब ये जो है S4 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू S2 है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे S6 होगा। ठीक है, कैसे 6 होगा, जब यहाँ पर हम लोग 1 डाले थे तब S4 आया, 2 डालेंगे तो S6 ही होगा ना, फिर यहाँ 8 होगा, फिर S10 होगा। तो फिर ये S4 जो है ये इससे बड़ा है। ठीक है, किससे बड़ा है, S6 से। जो ये S6 है वो S4 से बड़ा है। थ्रू दिस रिलेशन, हमने जो इस रिलेशन को ये लाया था ना, इस रिलेशन से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि S2n प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू S2n है। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं पुट करके देखी कि इसमें टर्म्स क्या क्या आ रहा है, S2 S4 S6 S2n में है और इसमें S4 S6 S8 इसमें है। तो मैं देख रही हूँ ये जो है ये इससे बड़ा होगा, ये जो है ये इससे बड़ा होगा, ये जो है इससे बड़ा होगा। तो S2n जो है इज, ये सीक्वेंस है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब आप बोलोगे कैसे, तो ये वाली चीज़ को देखो, ये बहुत इजी है। ये आप अलग अलग सीक्वेंस मत समझो, ये सब सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस तो एक ही चल रहा है, उसका सब सीक्वेंस मैंने लिया है जस्ट टू शो कि ये हो क्या रहा है एक सीक्वेंस के अंदर। तो मेरा जो S2 है, यहाँ पर S2 है वो छोटा है S4 से। ठीक है, फिर जो हमारा S4 है वो छोटा है S6 से। मतलब जैसे जैसे मतलब बड़ा क्या हो रहा है, आगे वाला टर्म बड़ा हो रहा है। S2 से बड़ा क्या है S4 से बड़ा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू S6, ऐसे जा रहा है पैटर्न, ऐसे जा रहा है। तो इसलिए हम इसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी। तो मुझे कन्वर्जेंट जो मैं प्रूव करूँगी तो उसके लिए मैं एक तो प्रूव कर दी कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक पैरामीटर इसका हो गया सक्सेसफुल। सेकंड जो पैरामीटर है वो हुआ कि इसको बाउंडेड दिखाना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंसी प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑल्सो वी हैव
वी हैव S2n जो है UN प्लस U2 ऐसे कर करके माइनस, अच्छा ये माइनस के टू एन तक आएंगे, तो माइनस के 2n से पहले वाला टर्म क्या होगा, प्लस के 2n-1 होगा, तभी तो इस पर एक और ऐड करेंगे तो ये आएगा। फिर इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, माइनस के 2n-2 टर्म होंगे, ठीक है। तो S2n अगर मैं अभी ग्रुपिंग करूं, तो अगर मैं UN को ऐसे लिख दूं और माइनस कॉमन ले लूं, तो अगर मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ तो जितने माइनस वाले टर्म है वो प्लस हो जाएंगे और जितने प्लस वाले टर्म है वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ U4 माइनस के U5। वैसे करते करते ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा U2n-2, और ये माइनस था तो U2n-1, और ये माइनस है तो ये प्लस एक्स्ट्रा बच जाएगा। अच्छा, इसका ग्रुपिंग नहीं होगा, ये तो हम लोग को पता ही चल रहा है कि ये वाला जो टर्म है ना उसका ग्रुपिंग नहीं होने वाला है। क्यों ग्रुपिंग नहीं होने वाला है, आप देखो, क्योंकि ये जो है हमने एक टर्म को बाहर छोड़ दिया है, तो ये 2n है, समझ रहे हो, इवन है। 2n है का मतलब समझ रहे हो ना, ये सीरीज में जितने टर्म है वो इवन टर्म्स ही है 2n के लिए। तो जब मैं एक टर्म बाहर छोड़ रही हूँ तो अंदर जितने भी टर्म्स है उसको जब आप ग्रुपिंग करोगे तो एक टर्म बच जाएगा, और टर्म्स की ग्रुपिंग करने पर एक टर्म तो बचेगा, सब के सब ग्रुप हो गए, एक बच गए। अब आप देखो जो U2 माइनस U3 की, मैंने इसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाया है, तो मतलब U2 जो है वो बड़ा है U2 जो है मैं क्या बोल रही हूँ, एक मिनट, नहीं, मैं इससे नहीं बोल रही हूँ, मैं जो U2 माइनस U3, हाँ मैं किससे बोल रही हूँ, आप वो स्टेटमेंट याद कीजिए। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था UN इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू UN+1, मतलब पहले वाला टर्म बड़ा होगा, तो वो U वाला टर्म की बात हो रही है यहाँ पर, इससे मैं इसको कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो U2 है वो बड़ा है U3 से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव देगा। U4 बड़ा है U5 से, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव देगा। इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये एज अ पॉजिटिव आ रहा है, ये सब पॉजिटिव है। तो U1 में से अगर मैं कोई पॉजिटिव टर्म को माइनस कर रही हूँ, तो कुछ भी पॉजिटिव टर्म को अगर मैं माइनस करूँगी तो जाहिर सी बात है कि वो जो मेरा आंसर आएगा वो छोटा होगा U1 से। अगर आप 5 में से कोई पॉजिटिव टर्म 2 माइनस कर रहे हो, 3 आ रहा है जो छोटा होता है 5 से, तो वैसे U1 से मैं माइनस कुछ को भी कर रही हूँ पॉजिटिव टर्म को, तो U1 से मेरा छोटा आने वाला है, ठीक है। तो मतलब S2n जो है इज़, देखिए जो S2n है इज़ लेस देन UN एज UN इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू UN+1 एंड UN इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ईच n, ठीक है, ठीक है ना। सो जो मैं इसे, तो इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड है, इससे तो यही पता चल रहा है कि ये बाउंडेड है, UN से बाउंडेड घिरा हुआ है, ठीक है, जो मेरा सीक्वेंस 2n है। तो इससे मैं ये पता कर रही हूँ कि जो S2n है मेरा सीक्वेंस, S2n इज़ बाउंडेड। नोट्स की चिंता मत करो, मैं आपको फ्रेशली नोट दिखाऊंगी, मैं आप खाली समझो, ठीक है। तो S2n इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए कैसे बाउंडेड हुआ, तो कन्वर्जेंसी का क्राइटेरिया यही फॉलो होता है कि बाउंडेड हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, मतलब ये कन्वर्जेंट है, हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, हैंस इट इज कन्वर्जेंट। और अगर कन्वर्जेंट है सीरीज, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, S2n इज इक्वल टू L, कुछ लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कन्वर्जेंसी का तो डेफिनेशन ही यही है, अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो लेट मान लिया कि S2n इक्वल टू 1 इसका लिमिट है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपको नोट्स की चिंता मन नहीं कीजिए, मैं आपको फ्रेशली नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्रेश। अब मैं कॉपी से आपको समझा रही हूँ, देखिए। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया, देखिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव किया, एंड देन आई हैव प्रूव्ड कि ये बाउंडेड है, ये दोनों के आगे स्टार है क्योंकि ये दोनों का क्राइटेरिया होता है कन्वर्जेंट दिखाने का। तो कन्वर्जेंट है तो लिमिट S2n इज इक्वल टू L होगा,
ठीक है, क्योंकि कन्वर्जेंसी का डेफिनेशन होता है। वी शैल नाउ शो दैट द सीक्वेंस S2n+1 ऑल्सो, मतलब अभी हम लोग सिर्फ S2n का सीरीज लेकर सब सीक्वेंस, हमने Sn का सब सीक्वेंस लेकर 2 सब सीक्वेंस माना था, जिसमें कि S2n जो सब सीक्वेंस है उसको हमने कन्वर्जेंट दिखाया। तो वैसे ही वी शैल नाउ ऑल्सो शो दैट कि जो S2n है ना वो भी कन्वर्ज करेगा सेम लिमिट पे। देखिए, अगर 2 सब सीक्वेंस आप लिए हो और दोनों, देखिए ये तो प्रॉपर्टी होता है कन्वर्जेंसी का कि कन्वर्जेंट, जब अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो आप उसका सब सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो वो सीक्वेंस का अगर आप सब सीक्वेंस करोगे ना तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, वो सेम लिमिट पे ही कन्वर्जेंट होगा। तो मैं मानी कि ये कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट मान ली L, तो अगर मैं इसको कन्वर्जेंट दिखाऊं तो इसका भी लिमिट L आना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। तो वी शैल नाउ शो दैट द सीक्वेंस दिस ऑल्सो कन्वर्जेंस टू द सेम लिमिट। S2n को मैं लिखी हूँ, S2n जो है, ये जो S2n+1 है, तो ये इसका सीक्वेंस के फॉर्म में आप लिखो, सीरीज़ के फॉर्म में लिखोगे तो ये -2n के बाद वाला टर्म है U2n+1। तो मैं इसको ग्रुपिंग कर ली हूँ, ठीक है। इसको क्यों ग्रुपिंग क्यों? क्योंकि ये तो मेरा S2n हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा बचेगा इधर। तो इधर देखिए मैं क्या लिखी हूँ, ये हमारा गिवन है। सेकेंड कंडीशन जो है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी UN=0, ठीक है। अगर UN 0 हो जाता है, इन्फिनिटी पर ये 0 होता है, तो इसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो भी इन्फिनिटी, वो भी 0 पे ही होंगे, उनका भी लिमिट पॉइंट 0 ही होगा, ठीक है, इन्फिनिटी पर। तो ये 0, तो ये 0, ये 0, तो ये 0। तो हमें यहाँ पर जब मैं लिमिट यहाँ पर लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई हूँ तो ये तो इसको तो मैं L मानी हूँ फ्रॉम 1, ये तो L हो जाएगा, लेकिन ये मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये S है, ये U है, टर्म्स को ध्यान में रखना है। S के लिए आप L लगा रहे हो क्योंकि हमने यहाँ माना है, इसको फ्रॉम 1 लिख देना। एंड ये जो U2n+1 है ना, ये किसका सब सीक्वेंस है? ये UN का सब सीक्वेंस है। तो जब UN 0 पर कन्वर्ज कर रहा है तो U2n+1 उसका सब सीक्वेंस भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंसी, ठीक है, of the subsequence. Now ये 0 हो गया as by the condition 2 limit n tends to infinity U2n is equal to 0. Now तो S2n का भी लिमिट क्या हो गया? L हो गया. So from 1 and 2 we see that both converges to the same limit, therefore the sequence Sn also converges to the limit L, hence the given series is convergent. ठीक है, काफ़ी easy था। आप नोट्स के लिए देख लीजिए इसे।